Hello YouTube family, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video I am going to discuss with you the question answers of the chapter Say the Right Thing. Summary is already there on my channel. Please visit the channel and listen to the summary or the story of the chapter so that you can easily understand the question answers also. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So let us see which is the first question. What does Mary's comment about Mr. Best's routine and profession reveal about her viewpoint on the bankers and their way of life? पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए आपको. So you know that Mary made some remarks on the life of Mr. Best, right? उसने कुछ रिमार्क्स दिए ना मिस्टर बेस्ट की लाइफ पे. तो उन रिमार्क्स से आपको क्या पता चलता है मेरी के व्यू पॉइंट के बारे में, मेरी क्या सोचती है बैंकर्स की लाइफ के बारे में. दिस यू हैव टू टेल इन द आंसर. सो मेरी थिंक्स दैट बैंकर्स लाइक मिस्टर बेस्ट हैव अ बोरिंग लाइफ. उसके हिसाब से जो लाइफ है बैंकर्स की, इट इज़ वेरी बोरिंग. देयर रूटीन इज़ डल एंड लाइफलेस. She says that he lives in the trains and she does not like his habit of reading only newspapers. So this is her viewpoint about the bankers like Mr. Best, that they have a very dull and lifeless life and they live in the trains, and moreover they read only newspapers and not any books. So this is her viewpoint. Next question is, what can we say about Miss Mary's understanding of polite conversation based on her interactions with the guests? So you know that Mary's mother, she made her understand about the polite conversation, that she should converse politely with the guests. So what do you think about her understanding of पोलाइट कन्वर्सेशन? उसको क्या समझ आई थी पोलाइट कन्वर्सेशन से? तो मेरी डज़ नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन. पहली बात तो उसको अपनी मदर की ये बात समझ में ही नहीं आई कि पोलाइट कन्वर्सेशन कैसे करनी है. शी इज़ रूड वाइल इंटरेक्टिंग विद द गेस्ट्स. शी मेक्स फन ऑफ मिसेस बेस्ट्स क्लोथ्स, criticizes the dog and does not follow her mother's advice to be kind. So since she has not understood the concept of polite conversation, she is rude with the guests and she is criticizing her dog, she is criticizing the clothes. So this shows that she has not understood anything about the polite conversation. Next question is, what do you think the repeated stage direction no one speaks indicates about the atmosphere in the room when Mary speaks? So if you have read the chapter thoroughly, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बार बार एक चीज़ आ रही है, नो वन स्पीक्स. अब नो वन स्पीक्स से आपको क्या पता चलता है कि रूम में कैसा एटमोसफियर है? The repeated stage direction no one speaks indicates that the atmosphere in the room becomes awkward and silent because of Mary's rude and criticizing remarks. So बार बार silence इसलिए हो रही है रूम में because the atmosphere is very awkward and silent. और क्यों हो गया awkward and silent? Because of Mary's rude and criticizing comments. Next question is, how does Mary's attitude towards the guests change throughout the play? तो मेरी का एटीट्यूड शुरू से लेके एंड तक क्या उसके एटीट्यूड में चेंजेस आती हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं? इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले मेरी इज़ ईगर टू टॉक एंड इम्प्रेस द गेस्ट. शुरू में तो बहुत वो ईगर है बात करने के लिए भी, गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए भी, बट एज द प्ले प्रोग्रेसेस हर मिस्टेक्स मेक हर एम्बेरस्ड. लेकिन जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता जाता है तो उसको अपनी गलतियों पर थोड़ी शर्म आती है, एम्बेरसमेंट फील होती है, एंड शी फील सॉरी मैनी टाइम्स. और प्ले के दौरान बहुत बार वो सॉरी भी फील कर रही है. क्लियर? Next question is, what do Mrs. Harding's
एंड मिसेज लीज रिस्पॉन्सेज टू मेरीज ब्लंडर्स ड्यूरिंग देयर विजिट रिवील अबाउट देयर करेक्टर। अब आपने देखा है कि मेरी हैज़ मेड मैनी ब्लंडर्स, ब्लंडर्स मीन्स वेरी बिग मिस्टेक्स। तो मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली के रिस्पॉन्स से आपको क्या पता चलता है उनके करेक्टर के बारे में? मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली आर पेशेंट बट नॉट हैप्पी। तो प्ले में हमें पता चलता है कि वो पेशेंटली उसकी बातें सुन तो रहे हैं, जो कि बहुत अनोइंग है उसकी बातें, बट दे आर नॉट हैप्पी। दे करेक्ट मेरी लाइक मिसेस हार्डिंग सेज आई हैव नो चिल्ड्रन। जब वो कहती है कि यू हैव ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, मेरी कहती है कि यू हैव ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, तो मिसेस हार्डिंग उसको करेक्ट करती हैं दैट आई हैव नो चिल्ड्रन, एंड मिसेस ली सेज दैट माई ब्रदर इज़ ऑल्सो अ banker. They stay calm but leave early, which shows that they are not happy with Mary's rudeness but are still patient. तो बहुत ही पेशेंटली वो उसकी रूड बातों को सुनते रहते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए वो जल्दी उठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज द प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एंगेज इन पोलाइट कन्वर्सेशन। सो प्ले हमें क्या सिखाता है इम्पोर्टेंस के बारे में अबाउट पोलाइट कन्वर्सेशन। पोलाइट कन्वर्सेशन मतलब किसी से रूडली बात नहीं करनी चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अगर हम पोलाइटली बात करेंगे तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? द प्ले शोज़ दैट द पोलाइट कन्वर्सेशन मेक्स पीपल फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी। सबसे पहले तो अगर हम पोलाइटली बात करेंगे तो दूसरे इंसान को कंफर्टेबल भी फील होगा और खुशी भी होगी। मेरीज रूड वर्ड्स अपसेट द गेस्ट्स। तो मेरी बहुत ही रूड वर्ड्स यूज़ कर रही है जिससे कि उसके गेस्ट जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं। दिस मेक्स द सिचुएशन वेरी ऑकवर्ड। पोलाइट कन्वर्सेशन लीव्स अ गुड इम्प्रेशन एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप्स। तो पोलाइटली अगर हम किसी से बात करते हैं तो एक तो हमारा खुद का इम्प्रेशन अच्छा जाता है, दूसरा हम उस इंसान के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज़ ऑल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you liked the video. If you find it useful, please like and share.